Class 11, today we will starting with the revision work for the first chapter, and in this I have written some questions, and the first question says like HCl2 is a chloride and X is a metal. State the formula of the sulfate and hydroxide of the metal X. So first of all you have to just see what is X. X is a metal. Then they are saying the Cl2 chloride has been there, so Cl, you should know the symbol of it, already it is given, but still from here you can, from this particular formula is given to you, from this you can easily detect the valencies of X and Cl. If you remember Cl is known to you, it is 1. Suppose you are thinking that let's start with it, we are doing in a general way that Cl is 1, you know it. So what should be the valency of X so that we could get this formula XCl2? So if suppose I put 2 over here and then I cross multiply here, then we can easily see that we will get the same formula, that is XCl2. So now we are able to understand that Cl valency is 1, X valency is how much? It is 2. So these two things are clear to us. Now they are asking you state the formula with sulfate. So sulfate formula is what? SO4. And what is the valency? That is -2, or you will take the whole number. Even just see the hydroxide formula is OH, its valency is -1, so 1 you will use. Now you have to make the formula with sulfate and hydroxide for this X. So let's come with this part, X and SO4. Now you know its valency, that is 2, its valency was also 2, so cancel it up, what you get? XSO4. This is the formula for the first case. Second case is X and OH. OH how much? 1, X is how much? 2. Cross multiply it, what you will get? XOH. So it is the whole symbol for this particular radical. So you will put these brackets and you put 2 over here. So this way you can easily calculate the formula. This is the first part. Now let's focus on some other examples also. Now this is one more example. I've written this question, so we'll see this part also. So X is a trivalent, it is a metal, and you have to make sure that you have to write a balance equation of X with the oxygen, and it should be a combustion reaction. So first of all we should know the X is a trivalent, so its valency will be 3, right? And oxygen, you have to give the equation with the oxygen. So oxygen is a gas, so X is a particular metal which reacts with an oxygen gas. So being trivalent in nature, what will be the formula? Let's focus on it. यहाँ side पे करते हैं X and O. It is 3, oxygen you know it is 2, cross multiply it. So what you get it? X2O3. So this will, an oxide will be formed and this will be the oxide. ठीक है, वैसे X जो है अगर 3 है तो ये एल्यूमिनियम है, so indirectly aluminium oxide is being formed, but they are asking you in terms of X, so you will give your answer in term of X. तो ऐसे आप फॉर्मूला बना लेंगे. Now balance it up, let's see. It's 2, this is the the part that is not having any other thing, it's single, so leave it, we'll balance it afterwards. Put 2 over here, it is 3 ना, तो अगर यहाँ हम 3 लिखें तो देखते हैं क्या आता है. ठीक है, 6 हो जाएगा, तो 2 यहाँ लिखो, this will be 6 but this will be 4, so put 4 over here. So this way you can balance your equation. This is also one part. We are just focusing on the reactions or the questions which comes in the board examinations. हम ज़्यादातर उन्हीं पे ही focus करेंगे इस समय. Now let's focus on one more question, that is if somebody asks you give the valencies. So let's see. Now this is one more question. They always ask you state which among them are radicals. तो radicals आपको मालूम होता है, they are group of atoms of different elements. ठीक है, यहाँ एक सिंगल एलिमेंट का ये एटम है, सिंगल एलिमेंट का एक एटम है, बट यहाँ पे यू आर हैविंग 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, क्रोमियम और ऑक्सीजन, उनसे बने हुए. सो व्हाट यू हैव टू, द आंसर शुड बी, आप आंसर जब लिखेंगे तो यू जस्ट पुट दीज थिंग्स. मैं तो ये अंडरलाइन कर रही हूँ, आप आंसर्स में ये दोबारा से लिख दीजिएगा. तो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू योर क्वेश्चन. आई एम फोकसिंग ऑन द मेन क्वेश्चंस विच डू कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. ठीक है, ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं, सो दे ऑलवेज कम्स. नाउ वन मोर क्वेश्चंस, जैसे अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दे आर गिविंग यू सर्टेन एलिमेंट्स एंड दे आर आस्किंग इफ दे वेरिएबल वैलेंसी. सो लेट फोकस ऑन दिस थिंग. कॉपर की कंडीशन में यू नो Cu+1 एंड Cu+2.
ठीक है, एक होता है Cu+1 और एक Cu+2 एंड यू शुड नो देयर नेम्स ऑल्सो चिल्ड्रन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये होता है कॉपर और रोमन में 1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, ठीक है, इसको हम Q+ भी बोलते हैं, है ना। एंड दिस इज़ व्हाट कॉपर 2 और दिस इज़ क्यूप्रिक, है ना। Sn जो होता है उसमें +2 एंड Sn+4 होता है, ठीक है। स्टैनस, स्टैनिक, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो आपको पता होना चाहिए, इनको याद कर लीजिएगा कोई भी आपको दिया जाए। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन ईज़िली गिव योर आंसर्स। तो दिस इज़ द वे हाउ यू विल गिव द आंसर। ये इसी तरह से आप आंसर लिखेंगे अगर बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आई एम फोकसिंग ऑन द मेन क्वेश्चन सो दैट यू कैन फोकस हाउ यू कैन गिव योर आंसर। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई एम राइटिंग, children please focus on this question also. They also ask you this also, that write the formula of the following compound. Please make sure this is a small gist I am giving you कि इस तरह के questions आते हैं, you have to practice more। ये नहीं कि 4 ही करके बैठ गए कि this is important, it is not at all important, it is I am just telling you कि these types of questions do come in your board examination, so you have to focus on these types। so इसमें plenty of examples है, practice at your home, ठीक है। सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट सोडियम डाइक्रोमेट। सो व्हाट यू विल सी दैट सोडियम यू नो Na सिंबल, डाइक्रोमेट इज Cr2O7, इट्स वैलेंसी इज़ 1, इट्स वैलेंसी इज़ 2। वैसे तो +1 होती है और यहाँ -2 होती है, बट हम चार्जेस नहीं लेते हैं, है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लाइड व्हाट यू विल गेट Na2 ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इस पे आएगा, this is Cr2O7। so this way you can write down sodium dichromate। we have already discussed it, I am just repeating it so that you can have an idea। अगर भूल भी गए हो तो एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। पोटेशियम प्लम्बाइट है ये, ठीक है, पोटेशियम सिंबल इज K, प्लम्बाइट यू शुड रिमेंबर PbO2, ठीक है। वैसे आपको मालूम है ना इसका +1 होता है, इसका -2 होता है। सो लेकिन हम लिखते हैं ऑपोजिट केस में, है ना, अगर आपको याद हो तो 1 है यहाँ 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो व्हाट यू गेट इट K2, है ना, इसको आएगा, और ये PbO2, है ना। अगर चाहो तो यहाँ सिंबल रिमेंबरिंग के लिए मतलब ये वो लिख सकते हो कि क्या इनकी वैलेंसी चार्जेस है। सो दिस वे। नाउ नेक्स्ट इज कॉपर 1 ऑक्साइड, राइट। सो लेट्स फोकस, कॉपर इज Cu, ऑक्साइड इज O, ठीक है। ये कॉपर की ऑलरेडी इन्हें दी रखी है, वैलेंसी 1 है तो यहाँ आप 1 ही लगाएंगे। ऑक्सीजन यू नो इट इज़ 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, what you get C2O। this is the formula, this is the main answer। so over here silver 2 chloride, है ना, सिल्वर की सिंबल Ag, क्लोराइड इज Cl, ऑलरेडी दे हैव गिवन यू इट इज 2 तो पुट 2 over here, है ना। वैसे भी मेटल है तो ये +2 होगा, ये -1 होता है ना, और ये 1 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट यू गेट इट Ag, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम यू विल गेट द सेम थिंग एंड Cl2। तो दिस वे यू विल गेट द फॉर्मूला। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। Class 9, this is another question which I want to discuss with you। they ask you, they give you the formulas and they ask you write the names। अब now let's focus one by one। देखो पॉइंट ये आपको इन पे फोकस करना है। ये कैल्शियम है, PO4 किसका सिंबल होता है ये आपको ध्यान देना है कि किस, ये रेडिकल जो है ये दिया रखा है PO4, इसका नाम क्या होता है। ये तो आपकी जो बैलेंसी चार्ट टेबल है उसमें दिया रहता है। सो दिस इज़ फॉस्फेट, ये कैल्शियम है तो नाम क्या हो गया आपका, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। सेम वे यू हैव टू फोकस ऑन दीज सिम्बल्स। Al क्या है, एल्यूमिनियम है। N के लिए याद करो नाइट्राइड यूज़ करा जाता है, तो इसके लिए क्या यूज़ नाम लिखेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। नाउ NaAlO2, अब Na क्या होता है, सोडियम है ना। और अगर आप बहुत ध्यान दे के चलें तो आपको AlO2 के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सोडियम है, ये क्या हो गया, एल्यूमिनेट, है ना, नाम याद रखना बेटा, एल्यूमिनेट। तो क्या हो जाएगा, सोडियम, और इसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनेट, ये इसका नाम हो गया। अब इस पर फोकस करो, ये क्या है, मैग्नीशियम है। ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो इसको, दोनों चीज़ें, मैं इसका दोनों नाम नहीं, तो नाम क्या करेंगे आप, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट,
You can write down this way also, and you can also write down it this way, magnesium हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। ये चीज़ भी, अब इस पे आओ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पे प्लीज़ फोकस करना, क्योंकि ये थोड़ा तुम लोग को इस तरह के जो होंगे सिंबल्स वो तुम्हें प्रॉब्लम देंगे, मतलब इस तरह के जो फॉर्मूले रहेंगे ये यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन इट। लेट्स फोकस ऑन दिस, व्हाट इज़ गिवन टू अस। ये जिंक है, दैट यू शुड नो। NH3 वैसे अमोनिया होता है, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्लास 10th में पढ़ोगे। इट इज़ अमीन, अमीन के लिए यूज़ करते हैं। ये जिंक है, सल्फेट का आपको मालूम है आइडिया, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया, जिंक, अमीन एंड सल्फेट, ठीक। अब इसको लिखना कैसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अमीन है पहले से शुरू करते हैं, ये क्लास 12th में है पूरी डिटेलिंग। तो बेसिकली मैं छोटा सा एक आइडिया दे देती हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर है, ये लिगेंड्स होते हैं, इनसे नाम शुरू करना है हमें पहले, ठीक है। ये यहाँ पे फोकस मत करना क्योंकि क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन फिर भी बिकॉज नेम्स आर देयर तो यू शुड रिमेंबर। तो ये कंडीशन क्या हो गई, हाउ मेनी टाइम्स इट इज़, दिस अमीन इज़ हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 के लिए हम यूज़ करेंगे टेट्रा, इसको हम लिखेंगे अमीन, राइट। फिर आ जाएगा जिंक, जिंक लिखा आपने, और फिर ये क्या है हमारा सल्फेट। ये कुछ नेम्स हैं जो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा अपने दिमाग में, नहीं होगा तो कुछ और भी देखते हैं अभी ना। वन मोर थिंग है ना, फिर वही उसी केस में वही देखो, उसी पैटर्न पर है, देखो 2 टाइम्स है तो 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई। फिर ये वही है, अमीन है, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, सिल्वर है ये, राइट डाउन सिल्वर। और ये क्या, क्लोराइड है, तो क्लोराइड। ये वे है आपको इसका लिखने का तरीका। देखो कुछ ही है आपके कोर्स में, ज़्यादा मैं इनमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और हम ले लेते हैं, कॉपर का है ये, ठीक है। आई थिंक दिस थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। फिर ये 4 टाइम्स है, टेट्रा अमीन, ये क्या है आपका कॉपर। अब देखो ये कंडीशन आ गई वेरिएबल वैलेंसी की, कॉपर है, यहाँ कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, ये वाले में नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में। और पीछे क्या है आपका सल्फेट, ठीक। ये थोड़ा ध्यान, अगर बाई चांस यहाँ OH लगा होता, बाई चांस अगर SO4 के बदले अगर ये चीज़ ऐसी होती, अगर कुछ और हो जाए, OH हो जाए, तो फिर आपको वही लिख देना, या सेम ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोक्साइड लिख देना, ठीक है। ये सब ऐसे आएगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि ये कंडीशंस आपको कुछ एग्जांपल्स से प्रोमिनेंट याद करने हैं आपको। नाउ चिल्ड्रन, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। स्टेट वाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ जिंक कार्बोनेट इज जिंक ZnSCO3। ये ज़रूरी नहीं है यही हो, ये आपके क्वेश्चन आपकी बुक का है अनसॉल्व का, तो मैं सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आपको दे कैन गिव यू एनीथिंग बट यू शुड रिमेंबर। अब फॉर्मूला आपको जो दिया रखा है दैट इज जिंक कार्बोनेट। नाउ व्हाट विल बी योर आंसर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ जिंक आर देयर, 1। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन इज देयर, 1। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, 1। सो व्हाट यू विल राइट डाउन, 1 एटम of zinc and कितना है, 1 atom of carbon and 3 atoms of oxygen, ठीक है। ये चीज़ है, तो बेसिकली जो कंपाउंड है वो होल नंबर्स ही ज़्यादातर, देखो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो जो एटम्स होते हैं वो सब होल नंबर्स में ही होते हैं, ठीक है, कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स के। तो ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देते हैं, तो ये जितना भी आपके पास हैं वो सारे कितने होल नंबर्स में है ना, देखो कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, तो बस ये लिख के आपको यू विल गेट द आंसर। चिल्ड्रन, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज़ वैलेंसी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। थोड़ा इसे समझ लो, देखो ऑक्सीजन एक फिक्स्ड है, उसकी वैलेंसी है दैट इज़ 2, ठीक है। अगर नाइट्रोजन यहाँ रख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये फॉर्मूला बन जाए N2O, है ना। अगर हम 1 यहाँ प्लेस कर दें N के नीचे तो ये फॉर्मूला आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैलेंसी N की कितनी मिल जा रही है, +1 मिल जा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम वे यू कैन फोकस ऑन इट, जैसे यहाँ N है और यहाँ O है, इसकी फिक्स है 2। अब ऐसा यहाँ क्या रखें कि जब हम इनको कैंसिल कर लें तो यही आ जाए। अगर आप 2 ही लिख दोगे तो 2 1 2, 2 1 2, तो आपको फॉर्मूला बनेगा NO। तो इस जगह N की वैलेंसी कितनी आ रही है आपकी, +2, ठीक है। क्योंकि देखो वैसे नाइट्रोजन भी नॉन मेटल में आता है, लेकिन कंपैरिजन टू अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ये लेस नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव में हमने लिया रखा। हम 1 2 और वी कैन फोकस द क्वेश्चंस इन इट। फॉर एग्जांपल
ना ओवर हियर इन दिस केस, ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो देखो ऑक्सीजन की फिक्स है 2। ऐसा हम यहाँ क्या रखें कि अगर हम देखें तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाए N2O3, है ना, क्योंकि ये देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ रहा है, तो यहाँ हमें क्या रखना चाहिए 3, तब ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो फ्रॉम +3। तो आप ये वैल्यूज़ को इस तरह से डिप्यूट करके ईजिली देख सकते हैं, है ना, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस वे यू कैन ईजिली फोकस ऑन योर वैल्यूज़ एंड यू कैन हैव द लुक्स लाइक लेट्स फोकस वन मोर एग्जाम्पल दैट इज़ N2O5, ठीक है। N है एन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2, फिक्स्ड है। यहाँ पे हम क्या रखें कि हमारा ये फॉर्मूला आ जाए। देखो अगर हम यहाँ 2, ये तो इस तरह से N2 हो गया, तो ऑक्सीजन को 5 लाने के लिए यहाँ N की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए हमें 5, ठीक है। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है +5। सो यू आर गेटिंग फ्रॉम लुकिंग दिस फॉर्मूलेज दिस वे यू कैन ईजिली गेट द, रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला दिया रखा है तो आप अपने आप निकाल सकते हैं किसी की भी वैलेंसी, ठीक है। दिस वे यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट एंड यू कैन गिव योर एक और एग्जाम्पल है इसका NO2, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये। अब इसकी कंडीशन देखो N है ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो N की वैल्यू जो है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसको, अगर यहाँ पे हम ये 2 लिख देते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं बैठेगा हमारा, है ना, क्योंकि यहाँ क्या लिखें, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे हम सपोज़ करो 2 लिख दें तो ये कट के NO हो जाएगा। तो ऐसा क्या लिखें, सपोज़ करो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा NO2। आ सकता है, बहुत ध्यान से देखो, ये 2 है, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे N की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू 2 आ रही है और N की वैल्यू इसके वजह से 1 आ रही है, जो 1 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये सोच के चल लो कि अरे यार इसकी 1 है, तो ये नहीं है, गलत है, ठीक है। तो दिस वे यहाँ पे N की वैल्यू हाउ मच यू आर गेटिंग +4। आई थिंक नाउ जितने भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, यू आर फेमिलियर हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग। तो बेसिकली जो ये नाइट्रोजन है, ये बेसिकली देखो वैलेंसी तो नाइट्रोजन वो नाइट्राइड है जो -3 हमें दे रहा है, ये नाइट्रोजन है, और ये जो जितनी वैल्यूज़ आपकी निकल रही हैं ये सब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। क्या है ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका एक और तरीका भी होता है निकालने का, लेकिन वो हायर ग्रेड का तरीका है, क्लास 11th में आता है। सो आई डोंट थिंक सो कि इट शुड बी रिक्वायर्ड बाय यू, बट स्टिल इफ़ यू वांट आई कैन टीच यू, ठीक है। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट समझा दे रही हूँ, इसकी वैलेंसी याद रखना, मैथ्स समझना कि O की वैल्यू जो है आपको -2 पता है ना इसकी, तो -2 होती है ना इसकी, ये याद रखना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मैथ्स में क्या करते थे, जब निकालते तो हम उसको x डिप्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 नीचे दिया रखा है तो ये 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ वैल्यू लिखिए -2, कुछ भी कोई पावर चढ़ी ऊपर नहीं चढ़ी तो 0 लिखिए, मैथ्स की तरह बिल्कुल सब्सटीट्यूट करना है ऐसे। तो 2x ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है मैथ्स में 2 0। अब इक्वल के इस तरफ इसको ले जाएंगे तो मैथ्स में चार्ज चेंज हो जाता है ना, पलट जाता है, ये माइनस का है, अब क्या बन जाएगा +2। अब x डिवीजन में ले जाइए, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्योंकि प्लस ऑलरेडी इसके साथ है डिप्यूट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +1। तो इस फॉर्मूले से n की वैल्यू कितनी आ रही है +1, और पहले भी हमने +1 निकाली थी, तो ये एक तरीका होता है निकालने का, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही, तो हम एक और देख लेते हैं अपना, जैसे NO का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है x है और इसकी वैल्यू है -2, हमें पहले ही मालूम, कुछ नहीं है ऊपर चार्ज तो ये 0 लगा देते, x है, -2 को इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगी, इस जगह n की वैल्यू कितनी आ रही है +2 आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, चाहे तो आप उससे कर लीजिए, मैंने पीछे तरीका बताया, और चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। मैंने अब 2 समझाए हैं आपको, आप चाहें तो सब कर सकते हैं। एक और मैं बता दे रही हूँ, N2O3। सो n क्या लिखेंगे, x मान के चलेंगे, इसको 2x कर लीजिए, प्लस ये क्या है 3 टाइम्स 3 एटम्स हैं तो 3 लिखा, इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि O की वैल्यू तो -2 ले रहे हैं हमेशा, मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू -2, 2x 2 3 ज़ा 6, लेकिन प्लस माइनस -6 इज इक्वल्स टू 0, 2x -6 को इधर ले जाएंगे +6 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू +6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू +3। देखिए आपकी सारी वैल्यूज़ जो पीछे हमने आंसर इनडायरेक्टली आपको उस वैसे करके बताया था, जो आपका लेवल है
उस लेवल से भी निकला, थोड़ा हाई ग्रेड पे देखेंगे तो इस लेवल पे, क्योंकि वीडियोस आप देखेंगे अलग अलग तो हर तरीके का दिया रखा है, इसलिए मैंने दोनों वेज आपको समझा दिए। बट बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड के हैं, तो जो पीछे का तरीका मैंने आपको समझाया वो आपके सबसे कन्वीनियंट मेथड है, उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ना समझ में आए तो ये भी मैथमेटिक्स फॉर्म में है, ये क्लास 11th का स्टैंडर्ड है, आप इससे भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हैं। तो टोटल ऑक्सीजन अभी जितने भी आपने देखा उन सब की जितनी ऑक्सीडेशन जो नंबर्स आपके नाइट्रोजन के निकले हैं वो कहाँ से कहाँ तक निकले आपके +1 से लेके +5 तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। चिल्ड्रन, दीज आर सर्टन सिम्बल्स विच यू शुड रिमेंबर and these are very important states and it will help you out to remember things. देखो ये आपका irreversible रिएक्शंस के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। रिएक्शन एक तरफ चलती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ये डबल एरो है आपका, तो ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए इंडिकेट करी जाती है। मतलब रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और प्रोडक्ट से बैक रिएक्टेंट की तरफ मूव करता है। ये शो करता है सॉलिड के लिए, ये शो करता है लिक्विड के लिए, ये शो करता है गैस के लिए, और AQ यूज़ करते हैं हम एक्वस के लिए। मतलब कोई भी चीज़ होगी जो वाटर में डिज़ोल्व होगी। कुछ चीज़ें हैं, एरो अगर कभी ऊपर लगा हो तो समझ लीजिएगा वो गैस को इंडिकेट कर रहा है, और अगर एरो नीचे लगा हो किसी रिएक्शन में तो समझ लीजिएगा वो प्रेसिपिटेट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सिंबल्स आपको क्रॉस करेंगी केमिस्ट्री में, विच विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दीज थिंग्स मीन्स, ठीक है। कभी क्या है ना, गैस के केस में G लिखा होता है, कभी G नहीं लिखा होता है, कभी कभी एरो लिखा होता है, कभी कभी PPT जो नीचे बनता है उसके नीचे सॉलिड लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है, उसके नीचे ये एरो लगा, उल्टा एरो लगा देते हैं, तो मतलब होता है प्रेसिपिटेट है जो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट सिम्बल्स एंड देयर मीनिंग्स कि व्हाट डज दीज मीन्स। इट्स क्लियर टू यू? अलग अलग लिख लो कलर पेन से, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव डिस्कस अबाउट द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर. I think most of the topics we have covered, only the balancing and few things are remaining in this chapter. We have already done in my previous two videos, but the point is that after summer vacations you have forgotten everything. So recall all these things, practice, and don't focus that these questions will come in the exam. It is just an idea so that you can have a look. If you have forgot, then you can practice them up and you can give your answers in a proper manner, in a systematic manner for your board examinations, right?